अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेसीज, एड्रेस और सब्जेक्ट मैटर लिख दिया है. क्विकली कॉपी कर लो. आई जस्ट वेट फॉर 1 minute and then I'll start dictating. दिस इज द सेंडर्स एड्रेस. इसके बाद एक लाइन लीव करना, डेट के बाद एक लाइन लीव करना. पेज नंबर नहीं हम लिख रहे हैं. पेज नंबर तुम्हारे नोटबुक का भी मैं कैसे बताऊं? काय बाड़ा. चलो लिखो पटपट. इसके बाद एक लाइन, इसके बाद एक लाइन, इसके बाद एक लाइन, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन. सारा सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए. ये आपको जो एड्रेस वगैरह है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा. सब्जेक्ट इज वी आर राइटिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट फूड क्वालिटी. ठीक है. सो राइट डाउन नेट सॉल्यूशंस, नीचे मुंबई, लीव अ लाइन, देन राइट डाउन डेट, देन अगेन लीव अ लाइन, then write again this address, and subject is complaint against food quality. टाइटल दे दो नोटबुक में कंप्लेंट लेटर. वी हैव रिटन वन कंप्लेंट लेटर, राइट. ये हम दूसरा लिख रहे हैं. क्वेश्चन आई एम नॉट डिक्टेटिंग बट यही होगा दैट राइट अ कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट फूड क्वालिटी टू द एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ फूड फॉर योर सॉल्यूशंस मुंबई. ऐसे कंप्लेंट अगेंस्ट फूड क्वालिटी. अब ये जो मैं आंसर डिक्टेट कर रही हूँ, रादर दिस क्वेश्चन, दिस इज अ अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन. ओके. सो इसका जो ये देखो, ये जो आंसर है, ये जो ICAI का ये जो रहता है सजेस्टेड आंसर्स, उसका ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. सी यू कैन सी यहाँ पर नीचे ICAI, राइट. सो उसके ही आंसर्स आई एम डिक्टेटिंग. हाँ, सब्जेक्ट के बाद आएगा ना. देखो ना फिर, राइट डाउन डियर सर ऑब्लिक मैम आफ्टर सब्जेक्ट राइट डाउन. हाँ, सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन, एक लाइन छोड़ के. डियर सर ऑब्लिक मैम. राइट डाउन सब्जेक्ट के बाद लीव अ लाइन, राइट डाउन डियर सर ऑब्लिक मैम. नेक्स्ट लाइन पर लिखो स्टार्ट द इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ. ये भी पता नहीं है कि नहीं, हो सकता है इन्होंने भी सिर्फ लॉगिन करके रख दिया होगा. समझाओ थोड़ा इनको कुछ. ये ऑनलाइन क्लासेस में मतलब खराब हो गई हालत. अभी मेरा टाइम पास मत कराओ. चलो लिखो. सब्जेक्ट के नीचे लिखो लीव अ लाइन, राइट डाउन डियर सर ऑब्लिक मैम. उसके इमीडिएटली नीचे लिखो आई एम डिक्टेटिंग द फर्स्ट पैरा. चलो शशांक तो नहीं सोया है एटलीस्ट. हाँ चलो. दिस इज विथ रेफरेंस टू, दिस इज विथ रेफरेंस टू, this is with reference to the food supplied, this is with reference to the food supplied to our cafeteria, this is with the food supplied to our cafeteria by your company's kitchen, by your company's kitchen, full stop. This is with reference to the food supplied to our cafeteria by your company's kitchen, full stop. Unfortunately, comma, unfortunately, comma, from the past few weeks, unfortunately, comma, from the past few weeks, we have observed that from the past few weeks, we have observed that the quality of food items, that the quality of food items, especially rice, wheat flour, especially rice, comma, wheat flour, especially rice, comma,
wheat flour and pulses, we have observed that the quality of food items, especially rice, wheat flour and pulses, has degraded considerably. Has degraded considerably. Has degraded considerably. ठीक है, नेक्स्ट पैरा लिखो. डू नॉट लीव अ लाइन. अच्छा सॉरी, लीव अ लाइन and extreme left. Yeah, write down. A few of our employees complained. A few of our employees complained of ill health. A few of our employees complained of ill health. Of ill health after having consumed your food. After having consumed your food. A few of our employees complained of ill health after having consumed your food. Full stop. I presume stale food. I presume stale food is not being sent to us. Is not being sent to us. A few of our employees complained of ill health after having consumed your food. Full stop. I presume stale food is not being sent to us. Now next line पर लिखो. Kindly assure that the raw material you use. Kindly assure that the raw material you use is of high quality. Is of high quality standard. Kindly assure that the raw material you use is of high quality standard and is ISI approved. And is ISI, तीनों लेटर्स कैपिटल में आएंगे. ISI approved. Kindly assure that the raw material you use is of high quality standard and is ISI assured. Sorry, approved ना. ISI approved. Again next line में लिखो. I request you to look into this matter urgently. I request you to look into this matter urgently and present a report within 2 days. Within 2 days time. Within 2 days time. I request you to look into this matter urgently and present a report within 2 days time. ठीक है, full stop. Leave a line, write down. Thanks and regards. अच्छा मैंने चेक किया, थैंक्स के बाद कॉमा नहीं आता है. ठीक है, यू आर आस्किंग मी ना. सो थैंक्स एंड रिगार्ड्स. रिगार्ड्स के बाद पुट अ कॉमा. थैंक्स एंड रिगार्ड्स. रिगार्ड्स के बाद पुट अ कॉमा. लीव अ लाइन, राइट डाउन. मैनेजर. थैंक्स एंड रिगार्ड्स के बाद लीव अ लाइन, राइट डाउन मैनेजर. और नेक्स्ट लाइन पर लिखो नेट सॉल्यूशंस. थैंक्स एंड रिगार्ड्स के बाद लीव अ लाइन, राइट डाउन मैनेजर. मैनेजर के बाद नेक्स्ट लाइन पर लिखो नेट सॉल्यूशंस. ठीक है, डन. कंप्लेन लेटर है ना, तो थैंक यू किस बात का लिखो. I request you to look into this matter urgently and present a report within 2 days time. And present a letter within 2 days time.
नेक्स्ट लाइन पर उसके बाद लीव अ लाइन एंड राइट डाउन थैंक्स एंड रिगार्ड्स, वो लिखा है वो सब, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है। नाउ आफ्टर हैविंग राइटिंग दिस लेटर आई वांट यू ऑल टू रीड दिस वन। कम टू द फर्स्ट लेटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी। बताओ पेज नंबर क्या है? 201 है शायद या आसपास में। अगेन यहाँ पर भी ऊपर नीचे हो गया है सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। सो लेटर ऑफ इंक्वायरी में आप कर क्या रहे हो? यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? यू वांट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। सो अब डायरेक्टली ये सब सेंडर्स, एड्रेस, डेट वगैरह जस्ट इसको मत रीड करो। क्या है पेज नंबर? 199। तुम्हारा बुक का है? कहाँ है बुक तुम्हारा? ओके, कम टू द सब्जेक्ट। आप किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हो? इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज, ठीक है। लेट अस रीड द फर्स्ट पैरा। With reference to your advertisement dated on October so and so, we wish to inquire about your catering services. Our organization is celebrating its 50th foundation anniversary in the coming month, and we are looking for somebody who would cater for our celebration dinner. We are expecting at least 500 guests and employees during the said event. It will be a formal event, and we will need full catering services that include several courses, desserts, waiters, and hosts. Kindly provide us with the details. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? You have to put a list of questions. ठीक है? First question देखो. Whether your catering services has the ability to handle a lavish celebration with a large audience such as ours. Whether waiters and hosts are provided by you. What are the offers and discounts available? Menu options and charges. If there are any additional charges levied for linens, centerpieces, etc. We shall be grateful if you could furnish the above information along with your quotations as soon as possible. Thank you. इसमें salutation आएगा. Yours sincerely, Mrs. Sadhna Kakkar, Administrator, Zest Designs. ठीक है? तो यहाँ पर ये जो एड्रेस वगैरह है ना, ये आपको यूजुअली क्वेश्चन में दी होती है। अच्छा, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट डज दिस लेटर से? बेसिकली क्या बोला है आपको? पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या लिखना है? दैट व्हाई डू यू नीड अ केटरिंग सर्विस। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दोगे बिकॉज यू आर सेलिब्रेटिंग सो एंड सो थिंग्स। यहाँ पर मेन मार्क्स किस पर होंगे? द वे यू फ्रेम दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस के ऊपर ही मार्क्स हैं, ठीक है। या जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट यू आर इंक्वायरिंग अबाउट अ क्लास, ठीक है, तो क्या क्या लिखोगे? Now that due to pandemic you are little more aware, as a parent आपको लिखना पड़ेगा that whether sanitization facilities are available, whether social distancing is being followed, what are the charges, right? या GST का क्या रेट है, कितना applicable होगा, XYZ, ठीक है। So basically this is nothing but asking questions, okay? I think ये इसका एक ही काफी है, इसका कोई राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, रिप्लाई पढ़ा था ना आपने? रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट तो आपने क्लास में ही पढ़ा था, राइट? कम टू दिस लेटर, रिकवरी लेटर। लास्ट वाला लेटर है, 7th वन, ठीक है। दिस इज द लास्ट वन, ओके। अब देखो व्हाट इज रिकवरी लेटर। मतलब क्या? आपने मुझसे कुछ सामान खरीदा है और आप मुझे पे नहीं कर रहे हो, तो आई विल राइट अ लेटर टू यू दैट प्लीज काइंडली कम एंड पे योर अमाउंट, ठीक है। लेट अस गो थ्रू द इंट्रोडक्शन। रिकवरी लेटर्स आर एड्रेस टू कस्टमर्स, इसको अंडरलाइन करो। या रिकवरी लेटर किसको लिखोगे? टू द कस्टमर्स। एंड हु इज राइटिंग दिस? द सप्लायर और द सेलर इज राइटिंग टू द कस्टमर्स, ओके। जस्ट अंडरलाइन द फर्स्ट लाइन। सो दे आर एड्रेस टू कस्टमर्स फ्रॉम हुम मनी नीड्स टू बी कलेक्टेड, इसको भी अंडरलाइन करो। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि पैसा कुछ पेंडिंग है उनका। द इंटेंट बिहाइंड राइटिंग सच लेटर इज टू रिकवर मनी विदाउट अनोइंग द कस्टमर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है। यू हैव टू राइट इन एन अ पोलाइट टोन, इसलिए इट इज रिटन विदाउट अनोइंग द कस्टमर्स। Such a letter will include detailed information regarding amount which is outstanding, then the last date for the payment. It must also include all the details regarding the legal action that could be taken in the event of further delay, ठीक है। तो आप ये क्या लिखोगे कि हम आपका 1 हफ्ते तक वेट करेंगे, वो 1 हफ्ते के अंदर आप पैसा दे देना, उसके बाद इफ नॉट देन वी विल टेक अ लीगल एक्शन, ठीक है। कम टू द सैंपल। अगेन डू नॉट रीड द एड्रेसेस वगैरह,
सब्जेक्ट क्या आएगा इसका? पेंडिंग ड्यूज. ओके, देखो, दिस लेटर इज अ जेंटल रिमाइंडर for the payback of the loan amount of rupees 4 crores that your company has taken from a bank in June last year. As per the guidelines, on completion of 12 months, you would need to pay back the loan with appropriate interest. As the payment is due since long, we would appreciate if you send the check immediately. ठीक है, पोलाइटली लिखा है, कोई रूड टोन या कोई वर्ड ऐसा नहीं है. ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू द नीडफुल विद इन द नेक्स्ट 6 वर्किंग डेज. यहाँ पर आपने एक लिमिट बता दी है, फेलिंग विच स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन विल बी टेकन. ठीक है, तो यहाँ पर आपने, अगर आप पे नहीं करते हो तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यू हैव रिटन दोज आल्सो, दैट अ लीगल एक्शन विल बी टेकन. काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट, थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली. ओके, पढ़ लो एक बार से फिर से लेटर. रीड दीज, ये टिप्स पढ़ो, टिप्स टू राइट रिकवरी लेटर. डन, पढ़ा आपने लेटर? लिखो क्वेश्चन नोटबुक में. राइट डाउन अ क्वेश्चन. राइट अ रिकवरी लेटर. नोटबुक में लिखने का है, हाथ पे नहीं लिखने का है. राइट अ रिकवरी लेटर टू रमेश शुक्ला. Write a recovery letter to Ramesh Shukla, comma, Northern Phase, comma, Northern Phase. Okay, write a recovery letter to Ramesh Shukla, Northern Phase, Pune 28. Who is the proprietor of ABC software? क्या लिखा है आपने? राइट अ रिकवरी लेटर टू रमेश शुक्ला, कॉमा, नॉर्दर्न फेज, पुणे 28, हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी सॉफ्टवेयर, regarding pending dues. Regarding pending dues. तो अपने मन से लिखना है ना. चलो कॉपी कर लो ये. आई हैव रिटन द सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस, ये सेंडर्स एड्रेस है. डेट, नाम लिखने का. हाँ, नेम ऑफ द एड्रेसी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, देन द सब्जेक्ट. कहीं पर लिखा.
Make sure to leave lines, huh? Done writing? चलो सब्जेक्ट के नीचे लिखो डियर सर ऑब्लिक मैम. हाँ डियर सर ही आएगा रादर. डियर सर. नेक्स्ट लाइन से लिखो दिस लेटर इज ए जेंटल रिमाइंडर. This letter is a gentle reminder for your dues worth rupees. For your dues worth rupees 2,50,000. This letter is a gentle reminder for your dues worth rupees 2,50,000 for the software. For the software 2,50,000 for the software which you purchased from us. For the software which you purchased from us on 20th July, 2020. This letter is a gentle reminder for your dues worth rupees 2,50,000 for the software which you purchased from us on 20th July 2020. ठीक है? Full stop. Before this, you have been informed. Before this, you have been informed. Before this, you have been informed about the same. You have been informed about the same on 10th August. On 10th August, 2020. Before this, you have been informed about the same on 10th August 2020, but no response was received from your side. But no response was received from your side. Full stop. Continue ही करो उसके बाद. But no response was received from your side. Full stop. Since the payment is due for long. Since the payment is due for long, comma. Since the payment is due for long, comma, we request you to send the check immediately. We request you to send the check immediately. Full stop. Since the payment is due for long, we request you to send a check immediately. Full stop. Next line लिखो हम. Kindly do the needful. Next line. Kindly do the needful within the next 10 days. Kindly do the needful within the next 10 days, comma. Kindly do the needful within the next 10 days, comma. Failing which legal action will be taken. We request, kindly do the needful within the next 10 days, comma, failing which legal action will be taken, and interest on the principal amount, and interest on the principal amount at the rate of 10% will be charged.
and interest on the principal amount at the rate of 10% will be charged. Full stop. Leave a line, write down. I'll repeat this. Kindly do the needful within the next 10 days, comma, failing which legal action will be taken and interest on principal amount at the rate of 10% will be charged. Full stop, leave a line. Kindly acknowledge the receipt. Kindly acknowledge the receipt of this letter. Kindly acknowledge the receipt of this letter. Full stop. Leave a line, write down. Thanking you. Full stop. Kindly acknowledge the receipt of this letter. Leave a line, write down. Thanking you. Again leave a then thanking you के बाद again leave a line, write down. Yours sincerely. Yours sincerely. Yours sincerely के बाद कॉमा. नेक्स्ट लाइन पर लिखो मिस रानी गौतम. नेक्स्ट लाइन पर लिखो मिस रानी गौतम. नेक्स्ट लाइन पर लिखो सीनियर मैनेजर. सीनियर मैनेजर. नेक्स्ट लाइन पर लिखो डायरेक्ट सॉल्यूशंस. डायरेक्ट सॉल्यूशंस. I'll repeat. Kindly acknowledge the receipt of this letter. Leave a line, write down thanking you. उसके बाद again leave a line, yours sincerely के बाद comma. Again leave a line, write down Miss Rani Gautam. Next line पर senior manager. Next line पर direct solution. Done? चलो ये इजी पार्ट है, इसमें सिर्फ दो ही चीज है. पार्ट 2 सर्क्यूलर. क्या होता है सर्क्यूलर? व्हाट इज अ सर्क्यूलर? हाँ, नोटिस टाइप होता है. करेक्ट. देखो अब इसमें क्या है. जो आपके कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड पर लिखते हैं ना, लगते हैं ना सर्कुलर्स वगैरह रिगार्डिंग द एग्जाम डेट, पेमेंट ऑफ फीस. सो दैट सर्कुलर कैन आई से इज एड्रेस टू एवरीबडी एट अ टाइम, राइट. किसी को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है क्या सर्कुलर? नहीं, इट इज फॉर एवरीबडी. ठीक है. देखो, ऑफिस सर्कुलर्स आर जनरली दोज लेटर्स व्हिच आर सर्कुलेटेड टू अ ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस. इसको अंडरलाइन कर लो. इन अ साइमल्टेनियस मैनर. They are circulated to huge number of employees in an office. Okay, in an office in a simultaneous manner, conveying a special message that needs to be followed in the future. Okay, it is user friendly and cost effective. है ना, सबको अलग अलग से भेजने से क्या बेटर है? Just put a circular so that everybody can read it. अच्छा, हर ऑफिस में एक ऐसी एरिया होती है which is specially designated to that, you know, सब आते जाते देख लेंगे. ठीक है. The information conveyed through a circular may vary anywhere from an invitation to a meeting to important issues like impeding meetings, new rules, or to crop up the immediate future. ठीक है. Come to the sample part. अब ये जो circular है, if this comes, this will come for 4 marks. ठीक है. अब देखो, यहां पर आता है एक्सट्रीम लेफ्ट पे सर्कुलर नंबर, बीच में आएगा सर्कुलर किस बारे में है, और यहाँ पर एक्सट्रीम राइट पर आता है डेट. ये आपको एज इट इज ऐसा ही लिखना है. लेफ्ट पर आएगा नंबर, राइट पर आएगा डेट, बीच में आएगा टाइटल. ठीक है. व्हाट इज द टाइटल? आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, राइट अ सर्कुलर रिगार्डिंग द न्यू ऑफिस वर्किंग आवर्स. ठीक है. देखो, और यहाँ पर आता है फॉर ऑल एम्प्लॉइज. तो जो मैंने रेड में मार्क किया है, दैट मच यू हैव टू राइट इन एवरी सर्कुलर. तो इसको फिक्स पैटर्न करके समझ लो. ठीक है. ओके, दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन दैट द ऑफिस टाइमिंग्स हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय ऑल द एम्प्लॉइज. Being an outsourcing organization, we maintain a different pattern of working hours as compared to the normal one. It is a sincere request to all the employees to follow the work timings as per the guidelines.
केटरिंग टू द यूएस वर्क टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस बुलेटेड पॉइंट्स में लिखने हैं जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं। सो व्हाट आर द आवर्स फ्रॉम 6 PM to 2 AM, सैटरडे संडे ऑफ, मील ब्रेक विल बी फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM, ओके। डिफॉल्टर्स विल बी पनिश्ड। लास्ट पैराग्राफ में आपको कॉन्सिक्वेंस बताना है कि अगर आपने ये सर्कुलर फॉलो नहीं किया है तो क्या एक्शन लिया जाएगा। Defaulters will be punished and strict action will be taken against repeated defaulters. In case of emergency, kindly notify the respected heads in advance. कि अगर emergency के केस में if you have to leave office early, तो उस केस में आपको उनको बस बता देना है, और यहाँ पर मैनेजर और उसका मैनेजर का नाम and what position she is at. That is all about office. That is all about a circular. Okay. Usually they are in one paragraph at a this thing, okay, उसके different paragraphs नहीं बनते. It is not an email, it is not a letter, ठीक है। Give the heading in your notebook, circulars. देखो क्वेश्चन, ड्राफ्ट अ सर्कुलर, ड्राफ्ट ए सर्कुलर, ड्राफ्ट ए सर्कुलर by issuing guidelines on dress code of employees. Draft a circular by issuing guidelines regarding the dress code of employees, ठीक है। तो टाइटल क्या दोगे सर्कुलर का? परफेक्ट, सिर्फ उतना ही देना है, ठीक है। चलो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे लिखो ये सर्कुलर नंबर, और कुछ भी XXX कुछ भी कर सकते हो। हाँ एक्सट्रीम लेफ्ट, हाँ ये सर्कुलर नंबर, ठीक है। फिर जहां पर आपने सर्कुलर नंबर लिखा है उसी के लाइन में एक्सट्रीम राइट पर लिखो डेट, वही लाइन पर होना चाहिए। हाँ बीच में लिखो, नेक्स्ट लाइन पर बीच में लिखो ड्रेस कोड। डन। उसके बाद लीव अ लाइन एंड राइट डाउन फॉर ऑल एम्प्लॉइज, जैसे यहाँ पर लिखा है लेफ्ट साइड पर, एक्सट्रीम लेफ्ट, फॉर ऑल एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बाद कोई कॉमा वगैरह नहीं है। फॉर ऑल एम्प्लॉइज, नेक्स्ट लाइन पर लिखो। नाउ स्टार्ट राइटिंग। It has been noticed that it has been noticed that some of the employees of the company are not following proper formal dress code. It has been noticed that some of the employees of the company are not following proper formal dress code. Simple. This is first paragraph. Now next line पर लिखो, do not leave a line. It has been decided
to bring a change in the dress code it has been decided to bring a change in the dress code by which men are supposed to be wearing by which men are supposed to be wearing men are supposed to be wearing a full formal suit and a tie. A full formal suit and a tie. Full stop. For women, continue करो. For women, full stop. Full formal suit and tie. Full stop. For women, हाँ, रुको रुको, थोड़ा मेरे को भी बनाने दो ना. इतनी इतनी क्या घाई है? वुमेन बोला कि नहीं तो मतलब for women pant suit women का comma for women comma pant suit एक ही वर्ड for women pant suit और traditional wear full stop. पैंट सूट और ट्रेडिशनल वेयर फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन पर लिखो द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी इफेक्टिव. द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी इफेक्टिव. द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट ऑफ फेब. अच्छा, ये डेट कौन सा लिखोगे? यहाँ पर डेट क्या लिखी है? वहां से 10-15 दिन छोड़ के लिखना. ठीक है. The following is going to be effective from 1st of Feb, 2020. ये अभी मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ. You write it according to your date. The following is going to be effective from 1st Feb, 2020. Next line पर लिखो anyone who disobeys with the guidelines won't be allowed to enter the office premises. Won't be allowed to enter office premises. Won't be allowed to enter office premises. Full stop. Leave a line. Leave a line and then write down. जैसे यहाँ पर लिखा है ना सिमरन तलरेजा, वैसे कोई भी नाम लिखो और उसके नीचे लिखो मैनेजर. डन. पढ़ लो एक बार. हाँ, राइदर मेक अ बॉक्स. आई फॉरगॉट टू टेल यू, मेक अ बॉक्स अराउंड. नहीं, लेटर को कोई जरूरत नहीं है. सर्कुलर को मेक अ आउटलाइन. लेटर को भी बना देते, बना सकते हो, बट मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है. टाइम मिलेगा तो बना लेना, बट डू नॉट कीप इट एट अ प्रायोरिटी. पर सर्कुलर को बना दो. हाँ, सर्कुलर को बॉक्स बना लो.
नहीं नहीं, चलो एक और सर्कुलर लिखो, एकदम छोटा सा ही है तो लिखना ही तो है यार, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ कुछ। सी आई गिव यू टू ऑप्शंस, ईदर राइट वन मोर सर्कुलर और ईदर विल डू मेमो। बोलो क्या बोलते हो? अरे कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। हाँ लिखना है कि पढ़ना है? इनमें से ऑप्शंस, यही ऑप्शंस है। देखो मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ यार। चलो लिखो क्विकली, सर्कुलर ही लिखो, आई एम नॉट टीचिंग यू मेमो, वो आप घर से कर लेना। चलो क्विकली लिखो, यहाँ पर सर्कुलर नंबर, यहाँ पर डेट लिखो, बीच में लिखो न्यू ईयर पार्टी। पार्टी की स्पेलिंग क्या है? नहीं, आई थॉट मे बी यू हैव फॉरगॉटन द स्पेलिंग बिकॉज ऑफ द रीसेंट ट्रेंड। ठीक है लिखो, सर्कुलर नंबर, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट पर राइट डाउन द डेट, गिव द हेडिंग न्यू ईयर पार्टी। नेक्स्ट लाइन पर लिखो न्यू ईयर पार्टी। डेट लिखो, डेट, leave a line and write down for all employees, for all employees, न्यू ईयर पार्टी के बाद एक लाइन लीव करना, उसके बाद राइट डाउन फॉर ऑल एम्प्लॉइज। नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करो। हाँ राइट डाउन, ऑन 30th December, न्यू ईयर पार्टी कब होती है ऑफिस में? 31st को ही होती है क्या? तो लिखो 31st December ही। अभी यहाँ पर लाइक इट्स 2-3 days पहले ना, लाइक यूजुअली आई हैव सीन कि ऑफिसेज में 2-3 days पहले ही होती है। क्या ही फर्क पड़ता है कौन से नए साल से। आई अंडरस्टैंड। लिखो ऑन 31st December, ऑन 31st December, ब्रैकेट में राइट डाउन सैटरडे, our organization on 31st December, ब्रैकेट में सैटरडे, our organization, हाँ कॉमा दे दो, our organization has arranged a new year party, our organization has arranged a new year party starting from 9:30 p.m. starting from 9:30 p.m. starting from 9:30 p.m. okay, next line पर लिखो, the events will be as follows, will be as follows ना, हाँ, the events will be as follows। मेरे को से गलत क्यों लग रहा है ये? the events, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर लिखो, नाउ वी आर राइटिंग सेट ऑफ इवेंट्स जो न्यू ईयर पार्टी पर होने वाले हैं। राइट डाउन द फर्स्ट इवेंट, स्टैंड अप कॉमेडी, फर्स्ट लिखो स्टैंड अप कॉमेडी, सेकेंड लाइन पर लिखो गेम स्टॉल्स, फर्स्ट इज स्टैंड अप कॉमेडी, सेकेंड इज गेम स्टॉल्स, थर्ड इज live band, fourth is food stalls, stand up comedy, game stalls, live band, food stalls, ठीक है, these are the 4 events। next line पर लिखो, please get in touch with the HR team
please get in touch with the HR team for more details. Full stop. Please get in touch with the HR team for more details. Full stop. Looking forward. Full stop के बाद looking forward to an active participation looking forward for an active participation. Full stop. और बस leave a line and write down the name and manager. जैसे यहाँ पर लिखा है ना, सिमरन तलरेजा and manager. ठीक है, ये सेल्स लेटर जो है ना, इधर होमवर्क लिखो बस, दैट्स इट. सेल्स लेटर पार्ट ए में सिर्फ पढ़ के आना. ठीक है, डन.